Hello students, today I am again here in a second part of the print and culture. In the first part, we have discussed so many things, Japan, Korea and China. They were the first book publisher. But here the manuscripts were there, wood block were there. We have discussed this thing. And also that these countries, from these countries only, what all the books printing culture, it reached to Europe, and there the first Gutenberg printing press, it was invented by the Gutenberg only. And then we have discussed so many things about the Martin Luther King and all. This you will learn in a proper way. And in the second part of this, again we will start from the religious debate. But before that, I want to discuss some of the points, and these points are very important. In a 1 mark question, it can be asked, or in a 2 marks or the 3 marks question, it can be asked. You will listen me carefully. Whatever I will explain, that all are very important. You have seen that according to the this reader's demand, the author and the writer, they started to write whatever they want. जो वो चाहते थे पढ़ना, वैसा ही लिखना ऑथर और लेखकों ने शुरू कर दिया. ये जो लेखन की एक सपने भरी दुनिया थी, ये लोगों को दूसरी ही जगह ले जाती थी. लोग इसको बहुत ही उत्सुकतापूर्ण तरीके से पढ़ते थे, लेकिन कुछ पढ़ने में असमर्थ थे. तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द रीडर. एक तो वो जो पढ़ नहीं पाते थे, दे वर लिसनिंग. एक कोई पढ़ता था और वो सुनते थे. एंड द सेकंड कैटेगरी वाज देयर द रीडर, वो खुद भी पढ़ते थे. एक पढ़ते थे और एक सुनते थे. दोनों ही कैटेगरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, हियरिंग एंड रीडिंग. देन वी विल डिस्कस दैट टैवर्नर्स, ballad and the folk tales, it will be printed. Taverners, what is there? देखो, जहाँ पर the peoples, they gathered there in a liquor shop or any drink house, if they are gathered and they stay there for some times. There also they discuss about the different printing books. So ये taverners, this word you should learn. 1 mark question it can be asked. Folk tales and the ballad, ये picture printed in these books, it also attract the reader. Then we will discuss about the religious debates again. Martin Luther King, we have discussed that Martin Luther King was a very courageous person who dared to write against the Roman Catholic Church. Again we will discuss this thing. Just see that. One is there, his name was Menachio. Menachio was the one person who tried to criticize the Roman Catholic, criticizing the Roman Catholic, and also introduce the new forms of literature. He was thinking that the Roman Catholic, the domination of the clergy, or the old tradition system of the Christians, that is not good for the readers or for the country's people. That's why he introduced the new forms of the literature. But Menachio, because whatever he criticized Roman Catholic, that made the Roman Catholic angry, and at last Menachio was executed. This we will discuss. Inquisitions one is there. It was known as the Roman Catholic Court. जहाँ कहीं भी कोई भी अपराधी सिद्ध किया जाता था, उसके केस की सुनवाई यहीं पर होती थी. तो इस तरह से मेनाकियो के भी केस की सुनवाई वहाँ पर हुई और उसको एक्सक्यूट कर दिया गया. हम ये समझ सकते हैं कि ये डोमिनेशन जो है रोमन कैथलिक चर्च का था. रोमन कैथलिक वो सोचते थे कि वो दे वर द एंजल, दे वर द सन ऑफ द गॉड. जो वो कह रहे हैं वो ईश्वर की बाणी है. जैसा कि अक्सर होता है, लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर की तरफ से बोल रहा हूँ, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा. उनकी ज़बान में लोग ईश्वर को सुनते थे. पता नहीं ये सही था या गलत, इसका बहुत लोगों ने विरोध किया. तो इस तरह से मेनाकियो को बहुत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से मार डाला गया. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रिलीजियस डिबेट्स थे उसमें बाइबल को भी रीइंट्रोड्यूस किया गया था. देखो, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि अगर हिंदू धर्म में भी रामायण, महाभारत या किसी भी रिलीजियस बुक को रीइंट्रोड्यूस किया जाए या ट्राई टू क्रिटिसाइज,
तो पूरा का पूरा जनमानस इसके अगेंस्ट में हो जाएगा, एंड द पर्सन हु ट्राई टू write against these religious book, they try to kill that person, or any against any violent activity they will do. So the same way Bible also was a holy book of the Christians. उसको जब इंट्रोड्यूस किया गया या मतलब उसका जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई, तो जो जिसने भी किया उसको सजा का बागी बना। ये आप समझ लीजिए कि रिलीजियस बुक को क्रिटिसाइज करने का साहस बहुत ही डेयरिंग कैरेक्टर से कर सकते हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग ने किया था। हम लोग यहाँ पर एक और भी बात डिस्कस करेंगे, जैसे बिब्लियोथेक्स ब्लू। ये एक ऐसा मतलब पैटर्न होता था जिसमें चीप टाइप के जितने भी बुक्स होते थे, ब्लू लेवल्स के, ऊपर से ब्लू कवर लगा होता था, लेकिन ये चीप कैटेगरीज का एक बुक होता था। इसको बिलेरियो ब्लूज कहते थे। एंड वन इज देयर चैप बुक्स। चैप बुक्स इट वाज नोन एज द स्मॉल बुक्स, जिसको पॉकेट के अंदर रखा जा सकता था। बुक्स जब डिफरेंट तरह के इंट्रोड्यूस होते चले गए तो उनका पैटर्न भी चेंज होता चला गया। कभी वो एक ऑडियंस की तरह होता था, उसमें छोटे छोटे पोरस बने होते थे। कभी वो चैप बुक होता था जिसको कभी वो पॉकेट में रख लिया करते थे, और कभी कभी वो बिलेरियो ब्लू जैसे होते थे जो कि चीप बुक्स हुआ करते थे, उसको भी चैप बुक्स उसको बोलते थे। और चैप बुक्स ऑल्सो दे कैन कीप इन अ पॉकेट्स, जब भी मौका मिले वो उसको निकाल कर पढ़ सकते थे। तो इस तरह की डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो बोली गई, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस डिस्पोटिज्म। व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्पोटिज्म? इसका मतलब होता है निरंकुश शासक। ऐसा शासक वाज डिक्लेयर्ड एज द एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब ये कि जिसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही पावर हो, और वो लोगों को डोमिनेंस करने का काम करे, जैसा फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने किया। वैसे बहुत सारे डिक्टेटर्स हुए, बहुत सारे ऐसे डोमिनेट रूलर्स हुए, जैसे आप जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के लुईस 16 को ही कह सकते हो। तो इस तरह के जो है राजाओं को डिस्पोटिज्म के शिकार आप बता सकते हो। डिस्पोटिज्म का मतलब ऐसे लोग जो एब्सोल्यूटिस्ट थे, दे ट्राई टू डोमिनेट द पब्लिक, और द जनता को डोमिनेट करने का काम करते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो आप जानते ही हैं कि उनके साथ बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हुआ था कॉमन पीपल का, क्लर्जी और नॉवेल्स ने मिलकर किया था। लेकिन उनके रेवोल्यूशन को इनकरेज करने वाले ऑथर और राइटर्स थे, यू नो वेरी वेल, एंड दे वर द वॉल्टेयर, जॉन लॉक, जीन जैक रूसो। इस तरह के बहुत सारे राइटर्स। सोशलिज्म रशिया के भी एक बहुत बड़े मतलब राइटर और ऑथर थे, वी रिमेंबर हिम, एंड हिज नेम वाज कार्ल मार्क्स, जिन्होंने सोशलिज्म की नींव रखी। तो इन राइटर्स ने बाय द पावर ऑफ द पेन दे इनकरेज द पीपल कि आपको सताया जा रहा है, आपको शोषित किया जा रहा है, यू आर एक्सप्लॉइटेड, जस्ट ट्राई टू रिवोल्ट, इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाओ। ये उन्होंने हाथ में वीपन्स लेकर नहीं कहा, बट द वीपन वॉज द पेन, जिसमें उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद वो सभी लोग इनकरेज हुए। आप कह सकते हो कि 50 to 60% ये जो पार्टिसिपेशन, भागीदारी थी, ये ऑथर्स और लेखक की ही थी, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कुछ भी हुआ वो ऑथर और राइटर्स के द्वारा हुआ। इनके नाम हमने आपको बताए, आप इसको याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन। इनके ऊपर भी, ये भी एक समाज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जिस तरह से मेल पर्सन है, उसी तरह से वुमेन ऑल्सो। वुमेन आप जानते हो, since beginning, not only the India, in Europe and other countries also, they were dominated. Nobody tried to listen them. कभी भी उनकी बात को सुनने की कोशिश नहीं की गई। हमारे देश में तो छोटी छोटी लड़कियों को कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती थी। कभी पूछा ही नहीं जाता था कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहती हो। तो वुमेन, when they tried to read the books, they also started to think that कि why we should not write, अगर हम लिखें तो कैसा रहे। तो बड़े पहले तो हाई क्लास, हाई सोसाइटी के लोगों ने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद फिर मिडिल क्लास ने भी पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे करके ये पूरा तरह से स्प्रेड हो गया सोसाइटी में। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, और आपको जानकर बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा कि व्हेन
the women writers started to write, they became more popular than the men writer. वो जो है वो पुरुषों की संख्या में, पुरुषों के तबके में ज़्यादा पॉपुलर हुई। और उनके कुछ यूरोपियन राइटर्स के नाम आपको ज़रूर याद रखने होंगे, जिनमें जेन ऑस्टिन थे। जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा था। आपको मालूम है प्राइड एंड प्रेजुडिस पर हमारे देश में एक पिक्चर भी बन चुकी थी जिसकी हीरोइन ऐश्वर्या राय थी। बहुत ही अच्छी चर्चित बुक थी, बहुत अच्छी चर्चित मूवी थी। उसी तरह से एक ब्रॉन्टे सिस्टर्स भी थी। ब्रॉन्टे सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स टुगेदर दे रोड। तो उनमें एनी, एमिली और शार्लोट, 3 गर्ल्स वर देयर, 3 सिस्टर्स वर देयर, और वो एक साथ जो है वो ब्रॉन्टे सिस्टर्स के नाम से जानी जाती थी। जेन ऑस्टिन और ब्रॉन्टे सिस्टर्स का नाम आप याद रखना। इनकी कहानियाँ इतनी ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध हुई कि लोग जो है वो ये जानने के लिए उत्सुक हुए। तो वुमेन को ऑलवेज एक्सप्लॉइट, डोमिनेट और एक कोने में बैठी रहने वाली लड़कियाँ असल में सोचती क्या है, वो चाहती क्या है, उनके एक जो है वो बहुत ही सीक्रेट, एक रहस्यपूर्ण संसार है, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनकी बातों को लोगों ने जानना समझना शुरू किया। When they started to express their views, जब स्त्रियों ने अपनी बातों को कहना शुरू किया, तब समाज और दुनिया ने जाना कि एक्चुअली वुमेन व्हाट दे वांटेड। अंडरस्टैंड? देन द थर्ड वन इज देयर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिनकी ध्यान रखने का काम माता पिता सभी करते हैं। तो उनके लिए भी बुक्स लिखे गए। आपको मालूम है जो किशोर होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, they fond of the adventurous books and also the different type of books it was written, जैसे साहसिक यात्राओं पे जो है वो उनके ऊपर कहानियाँ लिखी गई। फोक टेल्स और आपको फेयरी टेल्स होता है, बच्चों को वो पसंद आता है। इस तरह की कहानियाँ भी लिखी गई और बच्चे भी बैठकर क्रिएटिविटी, एक इमेजिनेशंस, एक कंसंट्रेशन स्टार्टेड बाय रीडिंग द बुक्स। तो इट्स क्रिएट अ वेरी गुड कंडीशंस in all the countries when they started to read the books, अच्छी बुक्स, अच्छी और जो है वो शिक्षाप्रद बुक जब उन्होंने पढ़नी शुरू की तो उनका भी जो है वो उत्थान हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमारे देश में राज सुंदरी देवी थी, उन्होंने शी वॉज बंगाली, तो उन्होंने एक बंगला में लिखी थी आमार जीवन। और इसी तरह से बदरुकैया हुसैन बहुत ही बढ़िया राइटर। तो बहुत सारी ऐसी जो है वो कादम्बिनी जो कि पहली मतलब डॉक्टर थी कहा जाता है, उन्होंने भी बुक्स लिखी। तो ऐसी बहुत सारी जो है वो स्त्रियाँ हुई जिन्होंने हमारे इंडिया में भी कहानियाँ लिखी, मतलब लेख लिखे, आर्टिकल्स लिखे और ऐसी चीज़ें लिखी। उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा जो है वो प्रसिद्ध हुई। तो वुमेन एंड चिल्ड्रेन, उसका उनका भी एक साइड है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। फिर हम लोग एक उसकी चर्चा करेंगे कि इंडिया में, in India what happened when the print culture comes to India। तो हम लोग एक ब्रिटिश की चर्चा करेंगे। हिज नेम वॉज जेम्स ऑगस्टस हिकी। इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। जेम्स ऑगस्टस हिकी वॉज अ पर्सन who tried to improve the mentality of Indian people. That's why he introduced one magazine, weekly magazine it was there, and it was known as the Bengal Gazette। Bengal Gazettes को का फाउंडेशन करने वाले जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। इनका नाम आप जरूर से याद रखना और इसको पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे यहाँ भी रिलीजियस डिबेट्स हुई। क्या हमारे यहाँ रिलीजियस डिबेट्स नहीं हो सकते? क्या आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से विडोज़ को या स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था? दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड एंड व्हाट दे डेवलप देयर एजुकेशन सिस्टम्स। स्कूल नहीं जा सकती थी लड़कियाँ। विडोज़ अगर हो गई तो उनको तरह तरह के इवल्स फेस करने पड़ते थे। हमारे देश में अनटचेबल्स की भी बहुत ही ख़राब कंडीशंस थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इन अ टेम्पल्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज वर देयर ऑल्सो। द ऑर्थोडॉक्स जो बहुत ही ट्रेडिशनल्स होते हैं, जो पुरानी बातों को मानते हैं। तो ऐसे रिलीजियस डिबेट्स हमारे यहाँ भी हुए और इसके द्वारा राजा राम मोहन राय जैसे लोग हुए जिन लोगों ने इसको दूर करने की कोशिश की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए जिन्होंने इसको दूर करने की कोशिश की। विधवा विवाह की परंपरा उन्होंने चलाई, ब्रिटिश ने उनको सहयोग भी किया था। तो हमारे देश में भी मतलब ईवल्स, सोशल ईवल्स के अगेंस्ट में बहुत सारी कार्रवाई हुई बाय द राइटिंग ओनली। यू कैन टेल दैट द राइटिंग में मतलब जो है वो लेखन में कितना पावर होता है।
आप समझ सकते हो। इंडिया में एक बात और भी हुई, कास्टिज्म। आपको मालूम है, अनटचेबिलिटीज, मतलब एक संप्रदाय को अनटचेबल, अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। कितना गलत है। सभी तो ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, क्यों किसी को अस्पृश्य और अनटचेबल्स कहा गया। तो इनके लिए भी जो है वो क्या किया गया, आप कह सकते हो। एक बुक जो है वो ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने लिखा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड ज्योतिबा फुले, दे वर द राइटर्स हु रोट अबाउट द कास्ट। छोटे बड़े लोग, ऐसी एक बुक्स तक जो है वो लिखी गई। इसके बारे में भी आप पढ़ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसरशिप के बारे में। व्हाट इज द सेंसरशिप? देखो बेटा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमारे यहाँ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, और उसके द्वारा उन लोगों ने ये अलाउ कर दिया कि कोई भी इंडियंस, इफ दे ट्राई टू राइट, बिफोर दैट दे शो द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल दे ट्राई टू सेंसर दैट। सेंसर का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ें जो ब्रिटिश ऑफिशियल के अगेंस्ट में होती थी उसको वो सेंसर कर देते थे, उसको वहाँ से हटा देते थे, और उसकी जगह पर कोई भी और ऐसी चीज़ें ऐड करने को कहते थे। इसको कहते थे सेंसरशिप, कि हम जो चाहेंगे वही आप लिखोगे, और जो हम नहीं चाहेंगे उसको वहाँ से डिलीट कर देना पड़ेगा। इस सेंसरशिप के अगेंस्ट में बहुत सारी आवाज़ें उठाई गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इट वॉज नॉट द फेवर ऑफ द इंडियंस, इट वॉज द फेवर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, आपको याद है कि 3 जो है वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुए, बाल, पाल और लाल। विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। तो उनमें बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने एक न्यूज़ मैगजीन्स शुरू की थी। न्यूज़ मैगजीन मतलब न्यूज़पेपर, एंड इट वॉज केसरी। केसरी में ही रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, और उन्होंने सेंसरशिप और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जम के क्रिटिसाइज किया था। उनको जेल भेजा गया, लेकिन वो डरे नहीं। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पेन के पावर ने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप देख सकते हो कि जितने भी टॉपिक्स हमने आपके सामने बताया, उसको अगर आप पढ़ लेते हो, कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो 1 मार्क में पूछे जाएंगे, और कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे। मार्टिन लूथर किंग, इनके बारे में पूछा, जैसे गटनबर्ग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, और इरेस्मस, इन सब के बारे में अगर जो है वो पूछा गया तो आप उसको 3 मार्क्स में बताओगे। इरेस्मस के बारे में और गटनबर्ग के बारे में 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन मार्टिन लूथर किंग का क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से लर्न करना। आई वांट दैट कि यू विल गेट। कोई भी पार्ट आप अगर छोड़ेंगे नहीं, सभी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आप एग्ज़ाम में होपलेस नहीं होंगे। जब भी कोई भी टॉपिक आएगा आप उसको कुछ तो लिख सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई दिस video segment, and I want to give you best of luck. आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू, बाय।